Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Wadwani and today we'll be discussing about the improvement exam dates for ICSE and ISC examinations 2025. Okay, तो as you all know कि आज the recheck results have come out for ICSE and ISC examinations. Okay, तो इसी से रिगार्डिंग वील बी स्टडिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम. तो सबसे पहले वील बी नोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स हैव कम आउट टुडे, ठीक, एट 11 AM, दैट इज़ 27 मई. तो इसके बाद व्हेन यू हैव सीन दिस एंड स्टिल इफ़ यू आर नॉट satisfied with it, तो अब candidates who had applied for recheck for their results and are still not satisfied, they can apply for revaluation. काउंसिल की वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिया होता है वहाँ पर. तो द सेकेंड स्टेप इज़ फॉर रिवैल्यूएशन. ओके, then the module for submitting the request for evaluation will be available from 28th May, means tomorrow, till 30th May. उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट कि जो भी कैंडिडेट्स नहीं सेटिस्फाइड हैं दे कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन. नाउ रिवैल्यूएशन की फ़ीस के बारे में पूछा गया है. तो इसमें द फ़ी चार्जेस आर ₹1500 पर कैंडिडेट, पर पेपर पर कैंडिडेट, एंड इट इज़ नॉन रिफंडेबल. ठीक, ऑनलाइन रिवैल्यूएशन मॉड्यूल कैन बी अवेलेबल, मीन्स वहीं पर ही इनका ऑप्शन आएगा इनकी वेबसाइट पर कि कहाँ पर यू कैन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन. एंड once the revaluation has been done, the marks whether increased or decreased will be considered as his final marks. ठीक है, and within 3 weeks of the application the results will come out. ठीक, you can say like by the end of June. Then the most important thing for today is the improvement examination की जो registrations हैं. तो now last time it was around June, mid June में the registrations were there, 19 June onwards, but this time they have taken up at May 30 to June 5, 2025 through the careers portal. Okay, means from 30 it will be starting. Now eligibility of the person to appear for improvement exam is that whose result in the main examination is declared as absent, वो eligible नहीं है. Otherwise students can go for improvement examination. How many subjects you can take up? तो you can take up at least a minimum of 2 subjects, maximum of 2 subjects for the main examination. मतलब उससे ज़्यादा you will not take. जैसे if a candidate selects the subject जैसे कि English और history, the candidate concerned have the option to take either both paper 1, paper 2, or any one of the subject. Likewise in the science subjects, that those who have chosen this subject will have with multiple papers will have the option to appear for all the papers or any one of the paper of the subject. Like English is there, so English maybe you want to apply for one paper, so you can take up any one paper. Okay, and ICSC में the statement is given that if you want to choose English will have to appear for both paper 1 and paper 2. और अगर आप लोग English के लिए appear कर रहे हो then you will be taking up both paper 1 and paper 2. ICSC में you have the option to appear for all the papers or any one of them, but for class 12 you don't have option. आपको अगर English is given तो you have to appear for both the papers. Then is paper to appear in, the theoretical paper will be considered here. Practical या फिर जो project marks होते हैं उसके लिए they are already awarded, carried forward. अगर वो वहाँ पर absent है then अगर वो theory exam में paper दे रहा है then the awards means marks are asked for. फिर registration के लिए बोला गया कि registration dates are May 30 to 5 June, एक हफ्ते का time has been given regarding this. ठीक है, फिर एग्जामिनेशन चार्जेस बताए गए हैं. तो एग्जामिनेशन चार्जेस 500 पर सब्जेक्ट पर पेपर वेयर एवर एप्लीकेबल, एंड स्कूल्स आउटसाइड इंडिया इज़ ₹5000 पर कैंडिडेट. फिर फॉर द ICSC सब्जेक्ट मल्टीपल पेपर जैसे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट एग्जाम चार्जेस विल बी 1000 अगर कैंडिडेट जो है वो दोनों पेपर्स को सिलेक्ट करता है. अगर साइंस सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है तो ऑब्वियसली इट विल बी 1500 बिकॉज 3 पेपर्स विल बी चूजन बाय द कैंडिडेट. ठीक है, देन ICSC के लिए अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करता है तो अगेन इट विल बी 100 इंस्टेड ऑफ 1000 इंस्टेड ऑफ 500, क्योंकि वहाँ पर उसको दोनों पेपर्स में अप्लाई करना पड़ेगा.
अब आता है डेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम. तो इट विल बी कंडक्टेड जुलाई 1 ऑनवर्ड्स. लास्ट टाइम इट वॉज जुलाई 12, तो 10 दिन ये इसको भी पहले कर दिया गया है. एंड इट विल बी मेड अवेलेबल इन द ड्यू कोर्स. कह सकते हो कि हफ्ते भर पहले, जून 20 के बाद द डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन, द शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन विल बी गिवन. सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, द कन्वेनर्स स्कूल, जहाँ पर द कन्वेनर इज़ अ पर्सन जो मीटिंग्स टेक ऑफ मतलब लेता है, जितने भी स्कूल्स होते हैं उनकी मीटिंग्स जो लेते हैं, तो वहाँ पर इट विल बी ऑलरेडी डिसाइडेड कि लखनऊ में वो पेपर जो होगा वो कहाँ पर होगा. रिजल्ट्स फॉर, और दिल्ली में अगर है तो कहाँ पर होगा, कोलकाता में है तो कहाँ पर होगा. देन results for improvement examination will be declared approximately 1 month from the date of conclusion of the examination. जैसे जो फाइनल मार्क्स है, जैसे लाइक 1 जुलाई को पेपर है, तो अराउंड 1 अगस्त या 25 जुलाई के बाद जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे. ठीक. फाइनल मार्क्स विल बी द मार्क्स जो पर्सन का वेदर जो भी हायर ऑफ द 2 मार्क्स है, लाइक 78 वॉज ओल्डर एंड 95 इज़ न्यू मार्क्स, तो ये कंसिडर होंगे. और अगर 95, अगर 78 आपके मार्क्स हैं एंड नाउ द मार्क्स आर 67, तो अगेन जो हायर मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे. कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली उनकी मेन एग्जामिनेशन की मार्कशीट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. फिर द अगेन ये इसमें बताया गया है कि नाउ इफ़ जो पीपल हु वांट टू गो एंड अप्लाई फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स, उनके लिए बताया गया कि हाँ वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. ठीक है. कैंडिडेट्स को वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हेन दे विल क्लिक एट द बटन एंड वहाँ पर ये ऑप्शन इज़ देयर, तो दे कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन, दे कैन गो फॉर लॉग इन एंड देन द फर्दर स्टेप्स दे कैन टेक अप. फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि वेदर द मार्क्स विल बी, मतलब वेदर द मार्कशीट विल शो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. तो 2 थिंग्स आर देयर, लाइक स्कूल्स विल कैन ओनली टेल दिस कि वेदर इम्प्रूव्ड इज़ रिटन और नॉट रिटन. हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर होती है, जो डेट ऑफ इशू ऑफ द मार्कशीट विल चेंज. जो मार्कशीट आपकी 30 मई को इशू हो रही थी, बिकॉज योर मार्कशीट्स आर गिवन ऑन सच डेट्स, रिज़ल्ट के बाद वो आती हैं, तो वही मार्कशीट अब आपकी अगस्त तक खिंच जाएगी और उसकी डेट वहाँ पर इशूड होगी जो करंट डेट है. वेदर इट इज़ रिटन, वेदर इट इज़ नॉट रिटन, देन ऑल्सो इट विल बी शोन. एंड एक्चुअली इट हार्डली मैटर्स कि इम्प्रूव्ड लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है. मीन्स इट इज़ योर मार्क्स, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव इट तो यू विल इम्प्रूव इट. ठीक है. तो but date of issue is for sure written, but improved can only be told by the school, so you can contact your school to know it. So that's it for today. I hope you all have understood. Ask questions if you have any, and keep preparing. Best wishes. Thank you.